हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डू आर डूइंग फाइन. So guys, let me welcome you guys in our next session of INMO flashback series. So guys, in this series, as you know, I think you must be knowing by now, we are solving previous year INMO questions year wise starting from year 2000. Okay. So far बच्चों हमने year 2008 तक solve कर लिया है. We are currently solving year 2009. And today we are going to solve the third question of INMO 2009. We have already solved the first two. You can find all the previous questions posted on our channel. Okay. Also playlist has also been made. आप वहां पे भी देख सकते हो. Okay. So guys, आज का question जो है that is based on greatest integer concept, greatest integer function के ऊपर है purely, है ना? A bit of number theory basically. So guys, we'll start it. Okay. Before that, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal and I have done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching mathematics for various competition exams since past 9+ years like IIT JEE, KVPY and Maths Olympiads. Okay. So guys, let us start without doing any delay. Okay, let me show you the question, guys. Again, the same thing I'm requesting again and again for you to from you guys in every session. Guys, please try this question by yourself first. अपने आप से इस question को पहले try करो, then only watch the solution. Otherwise, you'll not be having any good learning, right? Learn करने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा. Otherwise, please try to think about it yourself first. पहले इसको try दो. हो गया then that is very good. It will give you a boost, है ना? आपके confidence को boost मिलेगा. और अगर नहीं भी होता है, at least after that, when you see the video or the solution, you'll be able to understand where you went wrong, right? और या फिर आपने क्या चीजें सही सोची भी थी. So that will help you, have a very good learning. मतलब बहुत ज़्यादा important है. Okay, it will help you a lot in your learning. That is very important. Okay, so guys, I hope आप सबने इस question को try कर लिया है. You have given this a good attempt. So now I'm going to start discussing this question. So guys, the question says find all real numbers x, सारे numbers ऐसे x ढूंढने हैं such that this equation is satisfied. Where this square bracket means greatest integer function. So guys, x square plus 2x का greatest integer is equal to greatest integer of x का whole square plus 2 times greatest integer x. So we can first of all we'll simplify this form. I can see x square plus 2x form. तो 1 ऐड करने पे तो सॉल्व कर सकते हैं ना. I can simplify this format. So let us understand. Let us start. So x square plus 2x plus 1, दोनों तरफ plus 1 ऐड कर देते हैं, right? It will give you something like this. Now guys, 1 को तो हम ब्रैकेट के अंदर लेके जा सकते हैं because you guys know that I'll tell you. Okay, you should know that x plus k का greatest integer is equal to greatest integer x plus k for k belongs to when k belongs to integer set, right? When k belongs to integer set, you can write this thing, you can take that integer out or take in. So यहाँ पे guys ये 1 अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के, so it will become x square plus 2x plus 1 which is x plus 1 का whole square, which will become x plus 1 का whole square उसका greatest integer, and on the right hand side it is already a whole square, so it is greatest integer x plus 1 का whole square. So you have to understand that this point here guys, what is actually it is meaning. ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ because this will be the fundamental equation that we have to prove now. ऐसे x ढूंढने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, राइट? सो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग गाइस, ध्यान से सोचो. अगर आपके पास कोई x है प्लस 1, चलो x प्लस 1 सोच लो, है ना? इसको एक्चुअली मैं और मॉडिफाई कर सकता हूँ गाइस. लेट अस मॉडिफाई इट अ बिट मोर. अब जो अंदर बना हुआ है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, ये 1 भी तो अंदर जा सकता है. सो रादर लेट मी सिंप्लीफाई इट अ बिट मोर. सो दिस विल लुक लाइक x प्लस 1 का स्क्वायर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू greatest integer of x plus 1, right? And उसका स्क्वायर हो रहा है. So actually this one will be the most simplified form. अब समझना आपको इजी लगेगा. So guys see, x plus 1 let's say कोई नंबर है, it can be any real number, x plus 1 है ना. अब पहला लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है कि पहले उस नंबर का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर दैट नंबर एंड देन टेक इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर. ओके, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड. एंड व्हाट इज राइट हैंड साइड कि जो x प्लस 1 नंबर था उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले करो, पहले उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लो, फिर उसका स्क्वायर करो, एंड देन द टू नंबर्स शुड बी इक्वल. वी हैव टू फाइंड सच वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, तो गाइस मेनी अ टाइम सच काइंड ऑफ क्वेश्चन ना यू कैन ऑलवेज इमेजिन पुटिंग इन सम स्मॉल नंबर्स सो दैट यू कैन एबल टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग. मैं पेपर के अंदर कैसे प्रोसीड करना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ.
अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, अगर आपको इसका लॉजिकल थिंकिंग समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है, फिर इसको वर्ड्स में लिखना या फिर मैथमेटिकली प्रूव करना विल नॉट बी अ बिग डील देन, है ना। तो वैसे ये सोच के देखो, मैं आपको अगर एक अंडरस्टैंडिंग बताऊं, बेसिकली ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है ना कि क्या होता होता है। सो गाइस नंबर लाइन है यहाँ पे आपके पास, मैं आपको इसके ऊपर एक्सप्लेन करके बता देता हूं, राइट। सो गाइस इफ यू हैव सम इंटीजर्स, राइट, इस तरह से आपके पास नंबर्स हैं, let me mark 0 somewhere, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, ऐसे सोचते हैं, ठीक है, this is -1 -2। so guys बहुत ध्यान से सोचो, let's say your x plus 1 is some integer, right? let us think x plus 1 is somewhere between 0 and 1, let's say कहीं पे तो है, पहले लॉजिक सोचते हैं, 0 से 1 में कहीं तो है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले से अगर कितना है, दिस इज सम नंबर x plus 1, लेट्स से ये x plus 1 है, लेट्स से हम लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि नंबर लाइन पे क्या हो रहा है। ये x plus 1 है, तो x plus 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे ही आ गया, 0 हो गया पहले से, है ना। तो राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर करके उसका स्क्वायर करना है, वो 0 हो गया। बट दूसरे पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, कि उसका स्क्वायर कर दो पहले। तो गाइस 0 से 1 में अगर x plus 1 है तो उसका स्क्वायर इधर ही होगा कहीं पे, है ना, यहाँ पे कहीं पे x plus 1 का स्क्वायर हो जाएगा लेट से, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो भी 0 है। So you can say this is like kind of satisfying it, 0 से 1 वाला कोई इंटरवल लेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, right? This equation is being satisfied by that। चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं, कोई 1 से बड़ा ले लेते हैं। Let's say guys x की वैल्यू लेते हैं 1.8, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, देखो let's take this value as 1.8, इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। Let's say एग्जांपल के तौर पे x plus 1 को 1.8 ले लिया हमने, ठीक है। तो देखो गाइस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, राइट। सो राइट हैंड साइड इज बेसिकली ऑफ आवर इक्वेशन दैट इज 1, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया, उसका स्क्वायर फिर से 1 रहेगा। वेयर एज LHS क्या आएगा, हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर पहले करना है। 1.8 का स्क्वायर क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग, 3.24, राइट। 18 का स्क्वायर 324 होता है, राइट। सो 3.24 हो गया, सो दैट विल बी समवेयर अराउंड हियर 1.8 का स्क्वायर, just a second, so I'll write here। so guys देखो 1.8 का स्क्वायर somewhere will be somewhere here, right, 3 से बड़ा, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा। so left hand side is 3 for this equation, so it is not satisfying। तो guys सोच पा रहे हो 1 कब तक आएगा, मुझे ऐसे सोचना है 1 पॉइंट समथिंग जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो इतना ही बढ़ाना है, सो दैट स्क्वायर करने पे वो 2 को एक्सीड ना करे, है ना, स्क्वायर करने पे 2 को एक्सीड ना करे। आई गिव यू एन एग्जांपल, टेक 1.3, अगर आप 1.3 के साथ सोचते हो तो राइट हैंड साइड अभी भी 1 है, क्योंकि उसका पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर करके स्क्वायर करके तो 1 ही आएगा। बट लेफ्ट हैंड साइड 1.3 का स्क्वायर इज 1.69, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 ही आएगा। सो यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, सो यू हैव टू गो इट टिल देन, सो दैट वो उसका जो होल स्क्वायर है 2 ना बन जाए। सो बेसिकली आप √2 से आगे नहीं जाओगे, √2 से आगे गए तो उसका स्क्वायर होकर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से बड़ा हो जाएगा, 2 या 2 से बड़ा, तो 1 नहीं आ पाएगा वापस, राइट। सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इट, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर करके उसका स्क्वायर कर रहे हो, सो दैट विल रिमेन अ स्मॉल नंबर, राइट। बट नंबर का स्क्वायर करना है वो बड़ा नंबर हो जाता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करके थोड़ा छोटा होगा। सो यू हैव टू इंश्योर काइंड ऑफ थिंग कि स्क्वायर करने पे वो बेसिकली उसके स्क्वायर, उसका नंबर का जो स्क्वायर था ऑलरेडी, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो स्क्वायर था उस नंबर का +1 करके उसको एक्सीड ना करे, राइट। गेटिंग द पॉइंट, कि x plus 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो था उसका जो स्क्वायर है, लेट्स से दैट इज सम वैल्यू, है ना, तो उसका +1 को एक्सीड ना करे वो, जब वैसे पहले अगर स्क्वायर कर दे, राइट। आई होप यू आर गेटिंग द जिस्ट ऑफ इट। तो गाइस अब इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, बट ऑन द नेगेटिव साइड समथिंग एल्स हैपेंस। नेगेटिव साइड पे गाइस अगर आप नंबर को एज्यूम करते हो, यहाँ पे थिंक अबाउट दिस, इफ यू आर टेकिंग एनी नंबर ऑन द नेगेटिव साइड, एग्जांपल लेते हैं 1.2 भी ले लिया, लेट्स से -1.2 भी चूज कर लिया, स्क्वायर होने पे क्या होता है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाते हैं, पॉजिटिव पे आ गए। अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 था, उसका स्क्वायर तो 4 हो गया, राइट। तो नेगेटिव में आप एक चीज नोटिस करोगे गाइस, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -2, बट उसका खुद का स्क्वायर विल बी लेसर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 का स्क्वायर, डोंट यू थिंक, ठीक है ना। तो अब 2 केस लेके प्रूव करते हैं, लेट अस सी, ओके, ऑलराइट। सो गाइस देखो अब हम 2 केस ले रहे हैं जो, सो क्या लिखेंगे, फर्स्ट केस x plus 1 जो है, इफ x plus 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, x plus 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तब क्या होगा, अब हम नेगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड, जो हमने अभी डिस्कस किया,
अगर नेगेटिव साइड की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आप एक्चुअली सोचो कोई नेगेटिव नंबर अगर है तो x+1 जो नंबर होगा इटसेल्फ, जो x+1 है, ठीक है, जो उसका स्क्वायर होगा। अब देखो x+1 और जो x+1 का इसके लिए मैं ये लिख देता हूं, फॉर x+1 लेस देन 0, सॉरी गाइस, ओके, सो फॉर x+1 यहां पे हम एक चीज ये समझते हैं, इफ x+1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, नेगेटिव साइड पे है तो x+1 जो होगा, ठीक है, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, राइट, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू x+1, क्योंकि नेगेटिव साइड पे है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे पहले होगा। लेकिन जब स्क्वायर करेंगे, बट व्हेन वी स्क्वायर इट, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, सोचो -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, स्क्वायर करेंगे तो वो 4 बन गया, -1.2 का स्क्वायर 1.2 के स्क्वायर के साथ बनेगा। सो जब आप स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे कि x+1 का जो स्क्वायर है, सॉरी, x+1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका जो स्क्वायर है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x+1 का स्क्वायर, राइट, ये बन गया। अब देखो जो x+1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर है यहां से, वो तो x+1 के स्क्वायर के ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल है, सो दैट विल गिव यू x+1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, मैं उल्टा कर रहा हूं इसको लिखने वक्त, सो इस टर्म को आप सब्स्टिट्यूट करोगे क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1 का स्क्वायर, क्योंकि वो तो आपको पता इक्वल है। ठीक है, अब आप सोचो एक जो नंबर है x+1 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x+1 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब अब आप x+1 के होल स्क्वायर को एक सिंगल एंटिटी मानो, एक नंबर मानो पॉजिटिव है जो कि उसकी वैल्यू कम है उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से, होती ही नहीं है कभी भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर जनरली लेफ्ट साइड पे होता है, नंबर के लेफ्ट साइड पे होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्राफिकली नंबर लाइन के ऊपर अगर आप सोचते हो, सो दिस विल हैपन, और ये इक्वालिटी साइन नहीं हो सकता है फिर इसमें, ओनली पॉसिबिलिटी इज इक्वालिटी इन दिस केस, which implies x+1 is equal to x+1 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, x+1 का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू उसके स्क्वायर का इंटीजर, और इक्वल है तो वो कब होगा, जब इंटीजर है, राइट, सो दिस विल हैपन व्हेन x+1 इज इंटीजर, ठीक है, ये बात पता लग गई। दैट मीन्स यहां से आप देखो x+1 की वैल्यूज क्या क्या होंगी, x+1 विल बिलोंग टू, ठीक है, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, सारे नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। सो x की वैल्यूज कहां से कहां जाएंगी, आप इसमें देख सकते हो, x की वैल्यूज जो वेरी करेंगी दैट विल बी -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स x कैन टेक, ठीक है, तो x की वैल्यूज आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन पे, तो ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है, नेगेटिव साइड पे आपके ये वाले सॉल्यूशंस बन गए, ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो गाइज नाउ द सेकंड केस, ठीक है, अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं मैं इसको, तो आपको जो मैंने पहले डिस्कस किया था वही देखते हैं, ओके, सो थोड़ा स्क्रॉल डाउन, सो नाउ लेट अस टेक द सेकंड केस, ठीक है, व्हेन x+1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इक्वल टू 0 तो वैसे भी कवर हो ही चुका है, सो x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को भी मान सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। सो इन दैट केस, ठीक है, जब बड़ा है गाइज, पॉजिटिव है, तो सबसे पहली बात गाइज आप ये बोल सकते हो कि x+1 का जो स्क्वायर होता है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बोल सकता हूं पहले, x+1 का स्क्वायर एक टर्म है, ठीक है, तो वो जो टर्म है खुद अपने ही ग्रेटेस्ट इंटीजर से तो सॉरी बड़ी होगी, लेट अस थिंक, या बड़ी होगी ना, इट विल बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो अगर इंटीजर हुआ फिर तो इक्वल टू हो गया, अदरवाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट साइड पे वेरी करता है, राइट, किसी भी टर्म का वैल्यू अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा होगा या इक्वल होता है, ये तो हमें पता ही है, वी ऑलरेडी नो दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब जो गाइस x+1 का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगेन फ्रॉम दिस इक्वेशन जो हमें गिवन थी, तो x+1 का स्क्वायर दिस विल बी एक्चुअली बिकमिंग ग्रेटर देन इक्वल टू, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन गई, दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1 और उसका स्क्वायर, ये बन गया, राइट, सो x+1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1 का स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1 उसके स्क्वायर से बड़ा है, ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर।
ठीक है, ये बात आई होप क्लियर हो गई। ठीक है, नाउ लेट अस सी। ओके, सो गाइज यहां से मुझे क्या पता लगेगा, आई कैन टेक द स्क्वायर रूट, यहां पे मैं स्क्वायर रूट कर सकता हूं दोनों तरफ, तो क्या मिलेगा, x प्लस वन इज बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वन। ठीक है, और इसको मैं फर्दर फिर से क्या लिख सकता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वन। ठीक है, सो विच मीन्स ऑल राइट, लेट अस सी। ये तो वही चीज घूम के आ रही है ना। सो ओके, लेट मी सी, x प्लस वन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर, राइट, दैट इज फाइन। हाँ तो ठीक है ना, यहां से क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जो भी इंटीजर है उससे बड़ा आएगा वो x। ठीक है ना, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा होना चाहिए, ये बन गया एक। तो नाउ ऑल्सो, तो गाइज x प्लस वन का जो स्क्वायर है, अगेन लेट अस सी दिस, अब जो स्क्वायर है, अब अगर अपन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करें पहले, ठीक है, नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी लेस देन 1 प्लस स्क्वायर ऑफ सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर, ये बोल सकता हूं। x प्लस वन का जो स्क्वायर है उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसमें अगर मैं प्लस वन कर दूं, उससे तो छोटा होगा x प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, अगेन आई सब्स्टिट्यूट, सो दिस विल कम आउट टू बी 1 प्लस, अगेन इसको रिप्लेस कर देते हैं, दिस विल कम आउट टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो x प्लस वन इज लेस देन, तो अब कंबाइन कर लेते हैं, देखो इसको भी उसको भी। सो फाइनली क्या मिल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू x प्लस वन ही लेके चलते हैं ना, तो बेटर क्लैरिटी रहेगी, तो यहां पे रखते हैं, बाद में माइनस वन कर देंगे। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू x प्लस वन, मैं इस इनइक्वालिटी को उठा रहा हूं। ठीक है, एंड इट इज लेस देन, अब इससे पिक करते हैं। ठीक है, क्योंकि गाइस देखो सिंपल सी बात है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर कर रहे हो उसमें अगर प्लस वन कर दिया, उससे तो छोटा होगा ना वो नंबर, हमने तो यही अप्लाई किया और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं अगर हम दोनों तरफ, तो क्या आएगा, 1 प्लस ये जो नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वन, इसको ये लिख लेता हूं मैं, तो है ना, उसका स्क्वायर हो गया, उसका रूट करना पड़ेगा, उससे छोटा है वो। ठीक है ना, ये बन गया। नाउ व्हेन इज दिस ट्रू, मतलब किसी भी x के लिए उसका जो इंटीजर n आएगा, तो अब मैं क्या बोलूंगा, देखो फाइनली लेट मी स्क्रॉल डाउन। सो अब माइनस वन कर देता हूं, सो x इज लाइंग बिटवीन ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड लेस देन रूट ऑफ 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन, राइट, वो माइनस वन पूरी इनइक्वालिटी से माइनस वन कर दिया हमने। सो दैट इज द रेंज ऑफ x व्हेन x इज पॉजिटिव। देखो इसका मतलब फॉर एनी इंटीजर n, तो फाइनली रेंज क्या आएगी, दिखते हैं, देखो। सो x बिलोंग्स टू, फाइनली आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, एक तो नेगेटिव वाले केसेस हो गए सारे के सारे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, राइट, ऑल दीज यूनियन, कौन कौन से इंटरवल्स का यूनियन करेंगे, यूनियन इंटरवल्स, मैं ये लिख देता हूं, यूनियन ऑफ द इंटरवल्स वेयर n गोज फ्रॉम 1 टू n। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की n x की वैल्यू तो 1 से चलेगी ना, ठीक है ना, लेट मी सी, हाँ ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, तो ठीक है, ये लिख देते हैं, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा था, क्या इंटरवल है वो आपका, वो इंटरवल है n से शुरू हो रहा है एंड इट्स गोइंग फ्रॉम n टू, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू n आएगी तो कहां तक जाएगा, n से लेके रूट ऑफ 1 प्लस n प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन। ओके, लेट मी करेक्ट इट, सो n प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन, यहां तक जाना है आपको, राउंड ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे, राइट। लेकिन अब n शुरू कहां से होगा, ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है ना, n कहां से शुरू होगा, x की मिनिमम वैल्यू x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, सो x इज स्टार्टिंग फ्रॉम -1, राइट। ऑल्दो यहाँ पे वो इक्वालिटी केस आप कवर कर चुके हो, सो n विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है ना, तो n विल स्टार्ट फ्रॉम 0, तो रेंज क्या आएगी, देखो लेट अस चेक कर लेते हैं। वो -1 था, अगर नंबर आपका माइनस, ओके क्रॉस चेक करते हैं, अगर आपका नंबर 0 से -1 में था, ठीक है, लेट से, तो अगर x प्लस वन यहाँ पे था, या फिर सॉरी x की वैल्यू
इफ x इज बिटवीन दिस +1 करते हो तो आप x 0 से 1 में चले गए, तो दैट शुड सेटिस्फाई, है ना। तो n इज एक्चुअली गाइस स्टार्टिंग फ्रॉम -1 है। यहां से आप अगर आप ध्यान से देखोगे n आपका -1 से स्टार्ट होगा। ओके, -1 पुट करते तो देखो क्या आता है, -1 कॉमा 1 प्लस ये तो 0 हो गया, सो 1 - 1 0, सो -1 से 0 वाली रेंज कवर होनी चाहिए x के लिए, है ना, होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सो दैट इज इट गाइस, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये आपका फाइनली सारी रेंज आ रही है कि जब नेगेटिव है फिर तो सिर्फ इंटीजर सॉल्यूशंस आ रहे हैं, बट जब पॉजिटिव है तो बार बार हर एक इंटीजर सेट के अंदर, मतलब 1 से 2 में, 2 से 3 में एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिसपे के लिए ट्रू होगा, अदरवाइज उसके ज्यादा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था ना कि 1 से 2 के बीच में इट हैज टू गो फ्रॉम 1 टू √2, तो यहां पे देखो n को आप 1 डालोगे तो वही वैल्यू आएगी। पुटिंग n इक्वल टू 1 you'll see it will go from 1 to 1 plus 2 square √5 - 1। लेट अस चेक, कुछ गलत लिख दिया क्या, ओ सॉरी, x + 1 में सोच रहे थे ना, तो n की वैल्यू आप 0 डालोगे, है ना, तो 0 डाल रहे हो तो x + 1 जा रहा है वहां पे 1 से 2 के बीच में, सो इट विल गो फ्रॉम x, n को अगर आप 0 रखते हो तो आप वहां पे देखो √2 - 1 जा रहा है, तो सही है बिल्कुल, ठीक है ना। So that is the case, so that is the final solution. I hope it is clear to everyone, right? So that is it guys, so that is the solution. I hope सबको समझ में आया ये क्वेश्चन और लर्न किया इससे कुछ आप लोगों ने, ठीक है, right? We'll, other than that, we'll so keep on practicing. In the next video we'll come with the third question of INMO 2009. So till then keep practicing and all the best guys, take care, bye bye. Hello students, guys मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ now. Since we are towards the end of this session, this right, because 30th October को exam है, as you all guys must be knowing for IOQM, right? We are going to launch the time भी बहुत कम है, so we are going to launch the last course जिसके अंदर theory पढ़ाई जा रही है, and this is one is the recorded course, daily session रहेगा आपका, है ना, टेस्ट भी रहेंगे इसके अंदर। So we are going to launch this course named Last Mile, because नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, because this is the last possible course that you could do or you could opt for, है ना, for IOQM if you are targeting IOQM for this year or next year as well, जिसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी, सारी की सारी थ्योरी कवर होगी, वो फीचर्स मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ। So important thing is this batch is for class 7th to 12th, 7th क्लास के स्टूडेंट्स ऑल्दो इस साल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बट ये फॉर दो स्टूडेंट्स एक्चुअली उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा इंसाइट मिल जाएगा। सो सी मेनी थिंग्स माइट हैपन, 7th क्लास के स्टूडेंट्स को यू नो हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं की हुई हैं, बट द थिंग इज काफी चीजें समझ में आ भी जाएंगी, एंड दोज थिंग्स विल हेल्प अ पर्सन, हेल्प अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th टू एक्सप्लोर मोर, उसके आगे उसको समझने में टूल मिल जाएगा उसको समझने का, जिससे कि उसको समझने में बहुत ईजी होगा आगे के टाइम में। सो उसका लेवल अप तो पक्का हो जाएगा, दैट इज द रीजन फॉर क्लास 7th। और बाकी के सब स्टूडेंट्स तो इस साल में भी दे सकते हैं एग्जाम, तो उनके लिए तो ये कोर्स बेनिफिशियल होगा ही होगा, राइट। द डेट फॉर द बैच लॉन्च इज 22 अगस्त। सो सर गाइस 22 अगस्त से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे, एंड एवरी डे देयर विल बी अ सेशन, सो फॉर 1.5 आवर। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ, ठीक है, लेट्स सी। So guys, in this course you'll be getting 40 topic wise recorded lectures, same lectures that are going on and that have already been done in IOQM Achievers batch, जो already अभी चल रहा है, तो उसमें sessions हो चुके हैं already. So we have designed a new course of recorded lectures, 40 topic wise recorded lectures of the same lectures जो भी हमारे course IOQM Achievers में चल रहे हैं। Other than that, you'll get 15 revision lectures, ठीक है, ये अलग से मिलेंगे। These are the revision lectures of the other batches, pre-RMO revision batches that are going on, okay. And in this course you'll be having 10 part tests and 10 full tests. Once the syllabus is over in the October month, you'll get 10 full tests as well, okay. And one of the most important thing that you'll get with this batch or with this course is Telegram doubt solving. So guys, if you enroll with this course, right, you'll be added in our Telegram doubt solving group. You'll be added in a group on Telegram in which you can post your doubts, any doubts you have, and those will be answered within 24 hours, okay, by us teachers and our team, okay. So that is one of the most important aspect of this course. And then you'll get chapter wise assignments, so about 8 to 9 chapters हैं सीधा सीधा, तो हर चैप्टर के लिए आपको असाइनमेंट मिलेगा,
एंड उन असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे एज अदर देन ओवर एंड अबव द रिटन सोल्यूशंस। आपको टेक्स्ट में तो सोल्यूशंस मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा आपको उनके वीडियो सोल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इन दोज चैप्टर वाइज असाइनमेंट गाइज देयर आर 3 लेवल्स, आई विल टेल यू दैट बिफोरहैंड। चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स के अंदर गाइज 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 इज बेसिकली अंडर प्री-आरएमओ लेवल विच विल हेल्प यू इन गेनिंग ट्रैक्शन विद द टॉपिक, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए टॉपिक के लेवल की, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के लिए बेसिकली। एंड देन लेवल 2 इज बेसिकली IUQM लेवल क्वेश्चन, सो दैट इफ यू हैव टू डू, आपके पास टाइम कम है तो लेवल 1 और लेवल 2 जरूर करना इंपॉर्टेंट है, राइट, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर IUQM। तो गाइज सेकेंड लेवल में के अंदर जैसा मैंने आपको बताया IUQM लेवल प्लस क्वेश्चंस हैं, एंड इन द लेवल 3 यू विल गेट RMO प्लस INMO लेवल क्वेश्चंस। सो दैट विल बी लाइक काइंड ऑफ आप लोगों के लिए टाइम कम है क्योंकि यू माइट skip it, आपकी मर्जी है वो, अगर टाइम है तो you can obviously you should go for it, but level 1 and level 2 are the essential and the most mandatory topics levels kind of thing, तो आपको वो करना ही चाहिए if you are opting for this course, okay। and as I said, assignments के साथ में आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। you will get an Excel sheet जिसके अंदर हर क्वेश्चन का YouTube के वीडियो का लिंक दिया जाएगा for the solution thing, okay, you can watch the solution as well। and guys, you are getting all of these features and this course at this last ditch effort in 2,777 rupees. The cost of this course is 2,777 rupees, right? But if you apply my code LJ Pro, अगर आप ये code apply करते हो, you can find the link in the description as well. Then you will get this 10% instant discount, extra discount, and you will be able to get this course at 2,500 rupees. And guys, I assure you, you will get your full value, guys. पता है, मतलब लोग सोचते हैं कि 2,500 rupees मांग रहे हैं, ज्यादा रुपए हैं, ऐसा कुछ है, जो भी है। I would like to tell you guys one thing. हमने इतनी मेहनत से ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इतनी चीजें बनाई हुई है, आई एश्योर यू आपको ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, एंड दैट टू एट सच लो प्राइस गाइस, जिसके जो इसके अंदर हम जो क्वालिटी और जो चीजें दे रहे हैं ना आपको, इट्स लाइक आई वुड से कि दिस इज एक्चुअली प्राइस लोअर फॉर दैट, ठीक है ना। वो तो जस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा हो, वी आर लाइक प्राइसिंग इट वेरी नॉमिनली। सो आई वुड सजेस्ट इफ यू आर पॉजिटिव एंड यू वांट टू you have enthusiasm about IUQM, you should not think about the price। आपको इस कोर्स से बहुत फायदा होगा, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई गाइस, ये कोर्स के अगर थ्रू निकल गए ना आप, इफ यू डू अटेंड दीज 40 लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, आप ये जरूर सोचोगे बिफोर 40 लेक्चर्स एंड आफ्टर 40 लेक्चर्स आपका लेवल का डिफरेंस आप खुद महसूस करोगे। यू विल योरसेल्फ फील द डिफरेंस इन योर ओन नॉलेज आफ्टर अटेंडिंग दिस 40 लेक्चर्स, ओके। So that is all from my side guys, though you have the links in the description, आप click कर सकते हो, you will be directed to the page and you can enroll in our course directly, okay। So I would suggest guys, अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी ले लेना, so that again backlog create ना हो। 22 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है, so आपको देर ना हो जाए उसमें, फिर से backlog ना हो जाए, so that you feel pressurized, extra pressurized। So if you want to do qualify IUQM और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, so this is the course, आप इसको attend कर सकते हो, okay। So that is it from my side guys, thank you guys, I hope you enroll in our sessions and you'll come to our classes and it will benefit you, I hope, right? Thank you guys, bye bye, take care.